Okay, so we are going to discuss the same design, probably a file converter system. Okay, let's suppose the JP to JPG to PDF converter in this particular case. Okay, so we saw till now the file will be uploaded to S3, and then on uploading to S3, after that put event. So put event is nothing but whenever you will upload anything, it can generate a put event. So and S3 has the capability of publishing the notification to SQS, SNS, or Lambda, directly invoking the Lambda as well. Okay. So in this particular case, these three are the options available. Okay. Probably as part of this put event, you can generate or publish that message in this SQS. Okay. Or the SNS that we have seen till now, right? You can also invoke the Lambda directly without using this SQS or the SNS component. And Lambda will give you the enough flexibility of asynchronous operation. Okay. But for the simplicity, let's take the SQS or the SNS because they are meant to be for the same purpose, and probably you can configure your own pollers. Let's suppose the case when you don't want to invoke the Lambda, you want to have the EC2 pollers or the server polling the request from this queue. So in that particular case, it will be better to go ahead with the queues or the notification system. Okay. Okay. So we saw till here, right? Yesterday. Now, after this SQS, right? What will happen and what kind of a data will this SQS contain? इस SQS में क्या data रहेगा? I think URL of hi, the Ravi. file. And what type of conversion is needed? What type of conversion is needed? Okay, so probably file type, initial file type. Okay, and okay, so if you want to have this, right, conversion type, right, which actual mechanism or which actual file type it needs to be converted to, how this information will be populated in this queue. These are having the metadata of the files, right? This particular message can have the metadata of the files that is uploaded to S3, right? Because that event is getting generated from the S3 put event, right? S3 जो bucket है उसमें तुम कुछ डाल रहे हो, right? तो उसमें डालने के बाद जो event trigger हो रहा है, this message is because of that, right? So how that message will have that information कि क्या किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? We can maintain some kind of tag or topic. Tag or such kind of like वो kinesis में जैसे topic होता है. We can maintain, let's say, topic 1 for JPG to PDF, topic 2 for something, and based on the topic we can fetch that this service which is converting this topic will fetch only this kind of topic. करेक्ट, वो तो डायरेक्टली तुमको यहाँ से अवेलेबल है. लेट्स सपोज इफ यू हैव मल्टीपल क्यूज और इफ यू हैव मल्टीपल मैसेज ग्रुप आईडी इन द सेम क्यू, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द मैसेजेस फ्रॉम दिस, यू हैव दिस इंफॉर्मेशन अप फ्रंट, राइट, कि इस क्यू से रीड कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट द कन्वर्जन टाइप विल बी दैट ओनली. बट हैविंग दिस कन्वर्जन टाइप इन द मैसेज, हाउ विल पॉपुलेट दैट मैसेज? वो तो सही था, ठीक है, कि किनेसिस होगा या फिर एसक्यूएस में अगर मैं मैसेज ग्रुप आईडी के बेसिस पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, बट इसको पॉपुलेट करेगा कौन? ये एक पुट इवेंट से जनरेट हो रहा है, राइट, जिसमें कि फाइल का मेटा डेटा है. अगर S3 में कुछ मैं डंप कर रहा हूं, उससे ये इवेंट जनरेट हो रहा है, राइट. सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग दिस इंफॉर्मेशन? कन्वर्जन टाइप कहां से आएगा? ये लैम्डा. लैम्डा कर सकता है. देखो लैम्डा के लिए फिर क्या करना पड़ेगा. लेट्स सपोज S3 था, ठीक है, S3 के पुट इवेंट पे तुमने एक लैम्डा इन्वोक करवाया, एंड देन लैम्डा कैन हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पब्लिशिंग द मैसेज टू क्यू. सो यूई कैन हैव दैट पर्टिकुलर फिजिबिलिटी, ठीक है. तो बट उसके लिए हमें एक हॉप लगाना पड़ सकता है, प्रोबेबली द लैम्डा प्रोसेसिंग एंड देन डंपिंग इनटू एसक्यूज. बट ठीक है, लेट्स फॉर नाउ लेट्स सपोज कि वी हैव दिस कन्वर्जन टाइप एज वेल, ठीक है, फाइल टाइप है, कन्वर्जन टाइप है. व्हाट ऑल अदर इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर? अदर मेटाडेटा ऑफ द फाइल, राइट, कि फाइल साइज क्या है, फाइल लोकेशन क्या है, किस बकेट में है, ये सारी इंफॉर्मेशन, राइट. सो दैट whenever someone is consuming this message, he will be aware कि from where to read that file, right.
ठीक है. So now we have these information, file type, conversion type, metadata of the files. उसके बाद क्या होगा? So one question, Ravi, like S3 stores the file, right? File metadata. S3 So hosts. how does? हाँ, S3 hosts the file only. मतलब S3 is a file storage. Yeah, but like how does we S3 on the put event it will give the conversion type? No, हाँ, so yeah, that is the problem, right? कि conversion type नहीं आ सकता था, but उसके लिए mechanism क्या हो सकता है अपने पास? Probably on that put event we can trigger a lambda will see, ठीक है, कि इस bucket से ये information fetch हुई थी, metadata information already है, probably it can make an entry to this SQS. No, but even into the lambda, how does it get the conversion type? Yeah, so lambda probably can figure out कि which इस bucket में भी, ठीक है, there can be multiple folders, right? या फिर multiple bucket हो सकते हैं. तो जिस bucket से read हो रहा है, based upon that it can decide, it can maintain some kind of configuration, right? कि अगर इस bucket से read हो रहा है तो probably this conversion type is there. Okay, okay. क्योंकि you need to somehow यहाँ पे तुमको differentiate करना पड़ेगा, right? क्योंकि हो सकता है same JPG need to be converted to HTML and it can be converted to PDF as well, right? So you need to have some kind of a tag associated with either the file or the bucket with which anyone can know कि which file type it needs to be converted to. क्योंकि S3 तो एक फाइल स्टोरेज है, इसमें तुम बस फाइल डंप कर रहे हो, राइट? हाँ, बोलो. Okay, if we want to convert it into both HTML and PDF, so if we use this logic of the bucket name, then we have to upload our file into both the buckets, right? करेक्ट. तो उस केस में क्या है कि तुम्हारे पास दो एंड पॉइंट है. लेट्स सपोज तुमने कुछ ऐसा रखा है, ठीक है, कि तुम्हारे पास ये तुम्हारा वेबसाइट था, ठीक है, जहां से तुमको रिक्वेस्ट मेड करनी थी. अगर एज पार्ट ऑफ ईच रिक्वेस्ट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बोथ द टाइप्स, ठीक है, तो लैम्डा कैन इंटेलिजेंटली पुट 2 मैसेजेस, या फिर जो तुम्हारा कन्वर्जन सिस्टम है दैट कैन जनरेट 2 कॉपीज, एक HTML एक PDF. अगर तुमको इंटेलिजेंटली डिसाइड करना था, ठीक है, कि हे आई वांट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन कि प्रोबेबली ये HTML वाला है, ये PDF वाला है, ठीक है. सो आइदर विथ यू नीड टू हैव सम मैकेनिज्म, राइट, अपने साइड पे. S3 सिर्फ एक बकेट है. S3 को सिर्फ तुम एक समझो जिसमें तुमने फाइल डंप किया है. S3 डोंट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन. सो दिस इज योर बिजनेस लॉजिक कि तुम उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि दिस इज फॉर विच कन्वर्जन टाइप. जब तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आएगी, वेदर इट इज अ JPG टू PDF, तब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, राइट, कि ये PDF की रिक्वेस्ट थी कि HTML के लिए रिक्वेस्ट थी. अगर वो रिक्वेस्ट PDF के लिए है तो यू नीड टू I just want to check how this logic we can implement. Maybe we can rename the file. Probably like attach. We can append a conversion type, ठीक है, that can be one of the way. We can put in multiple buckets, that can be another way, ठीक है, or we can have some kind of a metadata that we can associate with that file. और probably और एक आसान तरीका कर सकते हैं, ठीक है, कि S3 में तुमने फाइल डंप किया, ठीक है, and you have made an entry in your, let's suppose a storage, ठीक है, या फिर स्टोरेज में, एंड उसमें तुमने बोला कि ये फाइल टाइप है जिसका लोकेशन ये है, ठीक है, एंड दिस इज द सोर्स टाइप एंड दिस इज द डेस्टिनेशन टाइप, ठीक है, एंड इस टेबल पे यू कैन राइट डाउन अ स्ट्रीम, ठीक है. और ये जो लैम्डा था, ठीक है, जैसे ही रिक्वेस्ट रिसीव होती है, लेट्स सपोज तुम्हारे सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की, ठीक है, उसने क्या बोला कि ठीक है, आई अपेंड प्रोबेबली आई इन्वोक अ लैम्डा. उसको तुम ऐसे रुको, देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स सपोज ये PDF के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है, ये HTML के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है. वन अप्रोच इज कि यहाँ पे मल्टीपल बकेट्स लगा दो, ठीक है, दिस इज बकेट 1, दिस इज बकेट 2, ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन द बकेट आई कैन फिगर आउट कि कौन सा कन्वर्जन पिक करना है. सेकेंड अप्रोच इज कि विल कीप इन द सेम स्टोरेज, ठीक है, मैं एक ही बकेट में रखूंगा B1 में, ठीक है, एंड पैरेलली आई विल एसोसिएट सम मेटाडेटा विद द फाइल, ठीक है, और विद द रिक्वेस्ट, ठीक है,
आई कैन मेक अनदर कॉल, ठीक है, एंड उससे डेटाबेस में प्रोबेबली आई क्रिएट एंट्री कि दिस इज द सोर्स फाइल टाइप, दिस इज द डेस्टिनेशन फाइल टाइप एंड अदर पैरामीटर रिक्वेस्ट आईडी या जो भी रखना है, ठीक है, एंड देन मे बी द स्टेटस और समथिंग लाइक दिस, एंड इस डेटाबेस से आई कैन फिगर आउट कि कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कोई और कुछ और इसमें सजेशन या इसमें कुछ और क्वेश्चन? कोई और वे जो लगता है कि और एफिशिएंट हो सकता है? एक चीज, one thing we can do is from SNS, we can have a lambda in between SNS and these different SQSs. Like okay, I can so annotate. Have this SNS, ठीक है, SNS you are saying कि this lambda, ठीक है, and then you have multiple SQS, multiple SQS जिसमें ये lambda push करेगा, ठीक है, valid. Correct. Each of them are for a specific conversion type. Okay, conversion type, ठीक है, ये हो गया PDF, ये हो गया HTML, ठीक है. Now how this lambda will process basically based on lambda will process based on the conversion type and put it in the SQS. but then each lambda service will convert. But again the same question, lambda को कैसे पता कि कौन सा conversion type है? ये तुम्हारा S3 था, राइट? ये तुम्हारा S3 था. S3 पे पुट इवेंट पे तुमने एक टॉपिक पे नोटिफिकेशन पब्लिश किया, राइट? So with this notification you can't have that logic of the conversion type, right? तुमको कैसे पता कि किस conversion type के लिए ये कॉल है? सेम वे अगर इसको नहीं पता है तो लैम्डा को नहीं पता हो सकता है, लैम्डा को नहीं पता हो सकता है तो आगे एसक्यूएस को नहीं पता हो सकता है. Yeah, the simple way could be like append the conversion type to the file name. करेक्ट, मतलब वही है. तीन तरीका मुझे जो अभी इमीडिएट लग रहा है. द फर्स्ट वन इज कि चेंज द फाइल, मतलब अपेंड द कन्वर्जन टाइप इन द फाइल, और उसको ऐसे अच्छे टर्म में उसको ऐसे बोलो कि मेटा डेटा ऑफ द फाइल, ठीक है, अपडेट द मेटा डेटा ऑफ द फाइल, ठीक है. द सेकेंड वे इज, ठीक है, कि हैव मल्टीपल फोल्डर और बकेट, ठीक है. एंड द थर्ड वे इज when we can have this probably make an entry in the database as part of your call only, ठीक है. डेटाबेस में एंट्री कर लो या probably जो तुम्हारा सर्वर वो कॉल रिसीव कर रहा है that will have that information, right? So वो probably SQS में एंट्री क्रिएट कर सकता है. So that will not, so that mechanism is going to be then sync, ठीक है. वो सिंक बेस्ड अप्रोच हो जाएगा, मतलब पूरा सिंक नहीं है, जस्ट वो इंफॉर्मेशन पुट करना इज अ सिंक थिंग. दैट इज अ वेरी, मतलब बहुत छोटा सा कॉल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है. सो प्रोबेबली हैव सिंक अपडेट या पुट इन डीबी और एसक्यूएस, ठीक है. सो ये तीन तरीका है जो कि इमीडिएटली अभी लग रहा है. देन के मल्टीपल अदर वेज. कोई और तरीका इसमें लग रहा है? एनीवन वांट टू सजेस्ट सम अदर वेज? ठीक है. इसमें रियलाइज हुआ, राइट, कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी एग्जैक्टली अभी तक जो हम कर रहे थे एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है. वहां पे भी हमारे पास कन्वर्जन टाइप आ नहीं सकता था. जब कन्वर्जन टाइप आ ही नहीं रहा तो दिस लैम्डा कांट हैव दैट इंफॉर्मेशन. अगर ये होता कि लैम्डा इज गोइंग टू रिसीव दैट कॉल फ्रॉम द कंज्यूमर ओनली, मतलब कंज्यूमर मतलब जो तुम्हारा कस्टमर है वो इसको इन्वोक कर रहा होता, ठीक है, जो तुम्हारी एपीआई गेटवे के थ्रू जो कॉल आ रही थी वो अगर इस लैम्डा के पास होती देन ये काम ये कर सकता था. इतना तो क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन, सजेशन? ओके, ठीक है. सो लेट्स सपोज टिल नाउ वी हैव सीन, ठीक है, कि ये हमारे पास S3 है, ठीक है. नाउ वी हैव some kind of a metadata in this SQS, right? What will happen after this? इसके बाद क्या होगा?
I think yesterday we stopped the discussion at whether to choose SQS or SNS. Yes, SQS versus SNS पे हमने किया था, ठीक है. And I think we have agreed, right? We can use SQS or SNS both. अगर based upon that requirement अगर लगता है this is the case of SNS, feel free to use SNS. If it looks like more of a publisher consumer, then we can go ahead with the SQS. And this particular thing can be clarified based upon the business requirement, ठीक है. तो जब भी तुम ये मैनेज कर रहे हो कि probably I'll go and use the SQS or SNS, ask the follow up question to the interviewer. उससे क्या होगा कि probably पता चलेगा उसको कि ठीक है, you know the differences between किस केस में SQS यूज करना है, किस केस में SNS यूज करना है, and that is going to be in your positive side, ठीक है. And after that discussion, either choose SQS or SNS. इस जैसे लास्ट वाला केस था, राइट, ऑर्डर सिस्टम, उसमें there were enough evidences behind choosing SNS on the first side. इस वाले में इट्स स्टिल डाइसी, मतलब देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंसेस कि नहीं तुमको एसक्यूएस यूज करना है या एसएनएस करना है. वी कैन गो अहेड विद द बोथ. अगर हम एसएनएस भी करते हैं तो प्रोबेबली वी कैन इनेबल अ कंज्यूमर एसएनएस के साथ. अगर हम डायरेक्टली एसक्यूएस करते हैं दैट विल आल्सो वर्क वेल, ठीक है. तो वी कैन गो अहेड विद आइदर ऑफ वन, ठीक है. बट फाइनल डेस्टिनेशन एसक्यूएस ही होने वाला है, राइट. एसएनएस से हम एक एसक्यूएस का कंज्यूमर मतलब एसएनएस को सब्सक्राइब करवाएंगे अपने एसक्यूएस कंज्यूमर से, राइट. तो फाइनली लेट्स सपोज कि हमारे पास एसक्यूएस है, अगर तुमको रिक्वायरमेंट है तो प्रोबेबली वी कैन ऐड अ लेयर हियर एसएनएस वाला, ठीक है. सो नाउ व्हेन वी हैव द फाइल मेटा डेटा इन दिस एसक्यूएस, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Your consumer will be consuming the message. Consumers will be consuming this message. ये consumer का रोल क्या होगा? I mean, to run the algorithm to convert the file. To run the algorithm to convert the file. Okay, ये सारे हैं converter system, ठीक है. ये converter system है, ठीक है. उसके बाद ये क्या करेंगे? There are two things from here, I think. एक first is we can upload it to S3 once again and send an email to the file that your file has been converted with the S3 link. इसमें दो चीज वन बाय वन लेते हैं दोनों को. पहला क्या है, S3 में क्लीन फाइल मतलब कन्वर्टेड फाइल अपलोड करना, एंड द सेकंड इज द नोटिफिकेशन, ठीक है. सो नोटिफिकेशन के लिए वी कैन सी कि हाउ वी विल नोटिफाई द यूजर, ठीक है. एक है तुम्हारा डायरेक्टली तुम यहाँ से S3 में पुट कर रहे हो, राइट. After converting the consumers, after converting it will directly put to a S3 bucket, ठीक है. So this is a cleaned S3 bucket, मतलब sorry clean में बोलना wrong word, converted S3 bucket, ठीक है. Okay, उसके बाद कोई और ऑपरेशन है यहाँ पे? हाँ, we have to notify the basically we can use an SNS with an email notification to the client, your caller. So as soon as this any of the file is published here, you will trigger a SNS notification that will eventually send out the email to the customer, right? Something like this? Yes, yeah. Okay, ठीक है, good point. So ये async हो गया. Another point I was thinking, I'm not sure. What if we directly, instead of uploading to S3, what if we directly send the file like browser में? Directly send the files में problem है, right? Directly send the file में है कि तुम्हारा पूरा का पूरा ऑपरेशन async है, right? तुम्हारा जो पुट के बाद जैसे ही तुमने S3 में पुट किया है, यहाँ से लेके तुम्हारा ये पूरा प्रोसेस async है. So तुम्हें कैसे पता कि कस्टमर इज वेटिंग फॉर योर फाइल कन्वर्जन? कस्टमर तुमको अपलोड कर सकता है फाइल, जा सकता है, राइट. थोड़ी देर बाद आएगा वो देखने के लिए, तो तुम वापस ब्राउजर को वो फाइल देकर के क्या करोगे? और वापस ब्राउजर तो रिसीव ही नहीं करेगा ना, तुम सर्वर को वापस भेजोगे, सर्वर बोलेगा कि ठीक है मेरे पास तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, किसको फाइल भेजना है. सो अच्छा, वी आर नॉट मेंटेनिंग अ सेशन फॉर दैट. लेट्स सपोज सेशन मेंटेन कर भी लेंगे तो क्या अचीव होगा? ब्राउजर ने डिस्कनेक्ट कर दिया, राइट. अच्छा, तुम सेशन इंफॉर्मेशन रख. अच्छा देखो एक चीज, अगर तुम कभी फेसबुक पे लॉगिन करते हो, ठीक है. सो जब तुमने फेसबुक पे लॉगिन किया तो फेसबुक का जब तुम क्लोज कर देते हो, स्टिल द सेशन कैन रिमेन सेम, राइट. हाँ, यस. क्लोज करके रीओपन करोगे तब भी तुम्हारा सेशन सेम है, राइट.
अगर तुम ब्राउजर क्लोज कर देते हो, वापस ब्राउजर चालू करते हो, तो सेशन चेंज होता है कि सेम रहता है? चलो ठीक है, उसको ऐसे आंसर करते हैं, सेशन सेम भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है, ठीक है। बट लेट्स सपोज जब कस्टमर ने अपना, सॉरी कस्टमर मैं बोल रहा हूँ, जब तुमने अपना फेसबुक ब्राउजर बंद कर दिया, अपना ब्राउजर बंद कर दिया, तो क्या तुम्हारे दोस्त ने जो मैसेज भेजा था वो तुमको डिलीवर होगा? नहीं, लॉग आउट कर दिया है। लॉग आउट कर दिया है या तुमने ब्राउजर क्लोज कर दिया है, तो मैसेज डिलीवर नहीं होगा, राइट? एग्जैक्टली। तो अगर तुम्हारे कस्टमर ने ब्राउजर क्लोज कर दिया है, तो तुम फाइल किसको रिस्पॉन्ड करोगे? ये क्लियर है? तुम्हारे पास सेशन इंफॉर्मेशन है भी, बट वो सेशन अलाइव है कि नहीं है ये नहीं पता, राइट? तुम्हारा कस्टमर अभी लॉग्ड इन है कि नहीं है, और तुम्हारा लॉग्ड इन तो हाँ yeah, but I got this idea from like we have such conversion tools, right, जो instantly देते हैं, तो how are they doing? हाँ, they make you wait, ठीक है। उसमें दो चीज हो सकता है, either they make you wait, ठीक है, या फिर ठीक है दे विल से कि हे कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स। इसलिए पहला हमारा क्वेश्चन जो था कि हाउ मेनी सेकेंड्स और मिनट हमारा फाइल कन्वर्जन गोइंग टू टेक। अगर मेरा फाइल कन्वर्जन ले सपोज 10 सेकंड, 20 सेकंड या 50 सेकंड ले रहा होता, सो प्रोबेबली आई वुड हैव शोन अ प्रोग्रेस बार, ठीक है, एंड आई वुड आस्क माय कस्टमर हे प्लीज वेट हियर, ठीक है। और अगर मेरा कन्वर्जन टाइम ले सपोज 1 मिनट का है या 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, इन दिस केस इट्स नॉट फिजिबल, राइट, फॉर द कस्टमर टू वेट। जो रियल वर्ल्ड साइट की तुम एग्जांपल ले रहे हो उसमें इसलिए होता है बिकॉज जो तुम्हारा कन्वर्जन है दैट जनरली टेक्स लेस देन अ मिनट, ठीक है, प्लस वहां पे एक प्रोग्रेस बार दिखा करके वो चीज हैंडल होती है कि तुम्हारा फाइल कन्वर्ट हो रहा है, वेट करो। अगर तुम्हारे पास ये फैसिलिटी होती कि लॉग्ड इन यूजर के लिए भी दे रहे होते, राइट, लेट्स सपोज कि आई एम अ लॉग्ड इन यूजर, ठीक है, या सेशन आईडी पे वो मेंटेन करके रखता है इन्फॉर्मेशन, तो नेक्स्ट टाइम आई ओपन दैट साइट, ठीक है, can it show me the list of converted files? अगर सेशन मेंटेन्ड है तो मे बी वी कैन, राइट। और हमारा ये रिक्वायरमेंट हमने पहले में भी डिस्कस किया था, राइट, कि वी गोना स्टोर अ फाइल टिल सर्टेन ड्यूरेशन। ये कल हमने देखा था, राइट, कि हम फाइल को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखेंगे, प्रोबेबली 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए स्टोर करके रखेंगे, और वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी। अगर चाहते हो तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, बट प्रोबेबली वी कैन कीप फॉर एटलीस्ट 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अलाउड है, ठीक है। सो डायरेक्ट रिटर्न इज नॉट पॉसिबल। इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी कि रिटर्न, डायरेक्ट रिटर्न क्यों नहीं पॉसिबल होता? प्लस एक और चीज मैं बताता हूँ, देखो, जब भी तुम ओके क्लियर, जब भी तुम उस साइट का एग्जांपल ले रहे हो, एक और चीज उस साइट में देखना, कभी वो साइट डाउनलोड नहीं करती है तुमको, वो बोलती है योर कन्वर्जन इज रेडी, क्लिक हियर टू डाउनलोड, राइट, ये बोलती है। सबने यूज किया होगा ये साइट, राइट, जिसमें वो फाइल कन्वर्जन होता है, तो वो ये बोलते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड, ठीक है। सो क्लिक हियर टू डाउनलोड का मतलब ये है कि तुम्हारे ब्राउजर के लिए या तुम्हारे उस सेशन के लिए, ठीक है, उसने ये फाइल कन्वर्ट करके रखी है, ठीक है। जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो कोई एक मैकेनिज्म ट्रिगर होगा, जो मैकेनिज्म तुम्हारा फाइल ला करके देगा। इट इज सेम वे कि तुम उस पेज को रीलोड मार दो, ठीक है, 10 सेकंड बाद, 1 मिनट के बाद तुम उस पेज को रीलोड मार दो, फिर भी वो फाइल तुम्हारा वहां पे रहनी चाहिए। या अगर मैं देखूं मेरा पास्ट कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट, तो उसमें मिलना चाहिए मुझे, राइट। अगर उस साइट पे what if the session ID is lost, let's say user clears the browser data or something like that? हाँ, और अगर तुम्हारे पास लॉगिन मैकेनिज्म नहीं है, सो इन दैट केस एनी इट विल बी लॉस्ट, राइट। अगर got it, वो तो फिर एज सिंपल एज दैट कि अगर तुम फेसबुक का भी कुकी स्टोर है और तुम अपने कैश को क्लियर कर देते हो, कुकी क्लियर कर देते हो, तो यू विल बी लॉक्ड आउट, राइट। और अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन था जो तुम्हारे सेशन पे स्टोर था, सो वो रिट्रीव होने का सवाल ही नहीं है, राइट। सेम वे, यस, ठीक है। सो ये क्लियर था, ठीक है, कि हमने S3 में किया और यहाँ S3 में क्लीन डाल दिया और नोटिफिकेशन सेंड हो गया SMS से कस्टमर को, ठीक है। दो मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो पहले मैं ये बात करता हूं, ठीक है, जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। व्हाट इफ दिस एसिंक डिलीवरी फेल्स? ये S3 है, राइट, ये तुम्हारा SQS था, ठीक है,
या फिर तुमने S3 से डायरेक्टली लैम्डा इन्वोक किया है, या प्रोबेबली तुमने SQS में इवेंट कंज्यूम किया, राइट? तो ये भी एक मैकेनिज्म है, राइट, जहां से ये ब्रेक हो सकता है। ये भी एक मैकेनिज्म होता है। एक और, चलो उससे इंटरेस्टिंग एक यूज केस ये बताते हैं। तुमने बोला डायरेक्टली तुम्हारे पास कन्वर्टर सिस्टम है, राइट? व्हाट इफ द फाइल इज करप्टेड? फाइल करप्ट था, जिसके चलते बार बार तुम्हारा प्रोसेसिंग फट रहा था, प्रोसेसिंग में एरर आ रहा था। देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन? We can send a email to the customer that your file was incorrect. ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए उससे पहले तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट, कि वो फेल किस रीजन से हुआ है। तुम्हारा कन्वर्जन सिस्टम में कोई एक बग भी तो हो सकता है, तुम्हारे कोड में कोई एक प्रॉब्लम था जिसके चलते कुछ कॉर्नर केसेस के लिए इन्वोकेशन फट रहा था। दिस कैन हैपन, राइट? तो अगर ये होगा, ठीक है, तो फिर व्हाट विल द केस? और इससे ये मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, एंड दैट विल ब्रिंग टू वन ऑफ द गुड, मतलब एक एसक्यूएस का एक और फीचर है दैट विल टॉक अबाउट विद दिस आंसर। ठीक है मोनिका, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल, तुमने पूछा था, राइट, कि किसी एक AWS टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इफ ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें कि तुम ये मैसेज कंज्यूम कर रहे हो, बट तुम्हारा जो कंज्यूमर है वो बार बार फेल हो रहा है उस मैसेज को प्रोसेस करने में, उस केस में तुम इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, राइट? कैन वी डिलीट दिस मैसेज फ्रॉम दिस क्यू अगर मैं अपने प्रोसेसिंग में फट रहा हूं? Depends upon our agreement actually. Depends upon the agreement, ठीक है। अगर तुम श्योर हो जाते हो, ठीक है, कि दिस इज अ करप्टेड फाइल, then you can delete। बट कोई एक ऐसा अनहैंडल या एक कॉर्नर केस था जो तुमको पता ही नहीं था, तो that will result in some unhandled exception, right? अगर उस फाइल को प्रोसेस करते टाइम कोई कॉर्नर केस मिस हुआ था, तो दिस विल कंटिन्यू कीप ऑन फेलिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल। बाकी सारे फाइल प्रोसेस हो रहे होंगे, बट ये फाइल के लिए वो फेल हो रहा होगा, एंड यू आर नॉट श्योर कि वेदर इट्स बिकॉज ऑफ दैट करप्टेड फाइल और तुम्हारे कोड में कोई बग रहा था, राइट? सो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस मैसेज कांट बी डिलीटेड फ्रॉम हियर, राइट? अगर तुम श्योर हो गए कि दिस इज अ करप्टेड फाइल तो तुम डिलीट कर दोगे। अगर तुम श्योर नहीं हो पाते हो कि ये फाइल जो है करप्टेड है, तो तुम उसको डिलीट नहीं करोगे। यू विल लेट दैट प्रोसेस अगेन विद सम अदर कंज्यूमर, राइट? तुम्हारे दूसरे कंज्यूमर ने पिक किया, कोड तो सेम डिप्लॉयड है, दूसरा कंज्यूमर भी फटा, थोड़ी देर के बाद दिस विल डेटा लॉस विल, डेटा लॉस तो डेफिनेटली होगा, बट डेटा लॉस से एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डेटा लॉस तो अगर करप्टेड फाइल था तो डेटा लॉस का इतना बड़ा दिक्कत था नहीं, ठीक है, क्योंकि तब तुमको पता है कि करप्टेड फाइल है, तुम कस्टमर को बोल सकते हो तुम्हारा फाइल करप्टेड था। बट व्हाट इफ मुझे मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये फाइल करप्शन की वजह से हुआ है, ये मेरे कोड के बग की वजह से हुआ है। कोई एक कॉर्नर केस था जो मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली क्या होगा कि मेरा हर एक कंज्यूमर पिक करेगा और फेल होते जाएगा। मैसेज विल कीप ऑन, एक फाइल था पहला, ठीक है, वो इस क्यू में रह गया कंटिन्यूसली। ऐसा लेट्स सपोज कि कॉर्नर के लेट्स सपोज कि मैंने 1000 फाइल अपलोड किया, ठीक है, 1000 फाइल में से 10 फाइल ऐसे थे, या 10% ऑफ द 10% नहीं, सॉरी 1% ऑफ द फाइल हैज कॉर्नर केस, ठीक है। सो दिस मैसेज विल बी कंटिन्यूसली, मतलब क्यू में आते जाएंगे, राइट? तो एक टाइम पे एक ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि 1000 ही था तो तुम्हारे पास 10 हो गया, राइट? ये क्लियर है? देखो, तुमने 1000 फाइल अपलोड की, ठीक है, उसमें से 1% ऑफ द फाइल ऐसी थी जो मेरे कॉर्नर केस को ट्रिगर कर रही थी एंड मेरा कोड फट रहा था। इन दैट केस इट विल बी 10 इन नंबर, राइट? वो 10 जो फाइल्स हैं वो डिलीट ही नहीं होंगी यहां से कभी भी, वो हमेशा क्यू में ही रह जाएगी, राइट? यू में अच्छा, किसी को वो भी डाउट है क्या? क्यू तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, राइट? तो हाउ इट विल बी रिमेन हियर, ये डाउट है किसी को? नो। देखो, एब्सोल्यूट बेसिक से बात करते हैं, ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट लगे जस्ट आस्क, ठीक है। ये वेरी वैलिड क्वेश्चन है कि अगर क्यू है
हम लोग क्यू की बात कर रहे हैं, राइट? तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो ये फाइल ऐसा कैसे है कि ये फाइल यहीं पे है और बाकी सारी फाइल प्रोसेस हो गई? वो क्यों प्रोसेस हो पाती है, इसका रीजन कोई देगा? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। Yeah, it will send an acknowledgement saying that we processed the file and it will delete it. Or else, like if it's still in process, we will be showing that it's in progress, and the next consumer will pick the next file. ओके, सो तुमने एक्नॉलेजमेंट तुम सेंड करोगे कि यू हैव रिसीव्ड दिस फाइल एंड द नेक्स्ट कंज्यूमर विल रिसीव दिस। तो इस किस कंसेप्ट की वजह से पॉसिबल हो पाता है, राइट? विजिबिलिटी टाइम आउट वाज द वन। विजिबिलिटी टाइम आउट की वजह से ही एसक्यूएस ये बोलेगा कि दिस मैसेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनीवन एल्स टू पिक, राइट? तो जब तक वो विजिबिलिटी टाइम आउट एक्सपायर नहीं होता है तब तक ये वाला फाइल प्रोसेस हो सकता है, ये फाइल प्रोसेस हो सकता है, राइट? एज सून एज द विजिबिलिटी टाइम आउट विल गेट ओवर, दिस फाइल फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से कोई इसको पिक करेगा, फिर से थोड़ी देर के लिए गायब होगा और बाकी पब्लिश होंगे। बट ये जो प्रॉब्लम की जड़ है ये तो यहीं का यहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो बस इस कंसेप्ट को मैं लूंगा, आज के लिए वाइंड अप करूंगा, 4 मिनट ऑलरेडी जाता है, ठीक है? बट ये वाला मैं कंसेप्ट चाह रहा हूँ एक बार क्लियर हो जाए। मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, ठीक है? और ये वन ऑफ द एडवांस कंसेप्ट टाइप है कि अगर तुम ये डिस्कस करोगे इंटरव्यू में तो तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा होगा, ठीक है? इसको थोड़े से बस अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है? यू हैव मल्टीपल मैसेजेस इन क्यू, ठीक है? तुम्हारे पास ये कंज्यूमर्स थे, राइट? C1, C2, C3। अगर ये वाला जो फाइल है, ठीक है, ये पिक करता है प्रोसेस करने के लिए, सो दिस फाइल वोंट बी अवेलेबल टू अदर कंज्यूमर्स बिकॉज ऑफ दिस विजिबिलिटी टाइम आउट। यहां तक हमने देखा है, राइट? तो इन दिस केस ये वाला फाइल कैन बी पिक्ड बाय C2, C3, ठीक है? एंड आफ्टर द विजिबिलिटी टाइम आउट एक्सपायर्स, ठीक है, दिस मैसेज विल अगेन बी देयर इन द क्यू, राइट? ये क्यू से तो डिलीट हुआ ही नहीं बिकॉज कंज्यूमर हैज नॉट डिलीटेड दिस फाइल। कंज्यूमर 1 हैज फेल्ड टू डिलीट दिस फाइल, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये कोड की बग की वजह से है कि किसी और वजह से है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये फाइल C2 ने वापस पिक किया, ठीक है? अगेन यहाँ वाले मैसेज सारे प्रोसेस हो रहे थे, बट ये फाइल एज इट इज रह रही है, विजिबिलिटी टाइम आउट के बाद वापस आ जाती है, ठीक है? और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मैंने क्या बोला कि 1000 में से 10 फाइल था जो कि कॉर्नर केस वाला था। तो अभी एक फाइल यहाँ पे आके स्टक हुआ, फिर दूसरा फाइल स्टक हुआ, फिर तीसरा फाइल स्टक हुआ, और ऐसे करके ये फाइल स्टक होते जा रहे, ठीक है? अब स्टक कैसे होता है? सिंपल सा उसको ऐसे देखो ना, जब तुम्हारे पास अंडरपास है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अंडरपास में अगर जाके गाड़ी खराब हो जाएगी तो प्रॉब्लम है, राइट? और अगर बहुत सारी एक व्हीकल खराब हो रही थी तो इट वाज स्टिल फाइन, राइट? क्योंकि तुम उसके बगल से जा सकते थे। व्हाट इफ एक और व्हीकल यहाँ पे अंडरपास में खराब होगी, एक और व्हीकल खराब होगी, तो फिर आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम केसेस है। अगर ऐसे बहुत सारी फाइल है जो कॉर्नर केस वाली थी जो कि प्रोसेस नहीं हो पाती है, सो दैट विल बी यहाँ पे जाके स्टैक हो जाएगी, राइट? सारी फाइल्स यहाँ पे स्टक है। तो देयर शुड बी सब मैकेनिज्म, ठीक है, जिससे कि मैं फिगर आउट कर पाऊं कि इस फाइल्स में कोई तो प्रॉब्लम है, ठीक है? आई एम नॉट श्योर कि ये फाइल करप्टेड है कि नहीं है, बट इस फाइल में कोई तो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एसक्यूएस में क्या प्रोविजन है, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द क्यूज में क्या प्रोविजन है? देखो एसक्यूएस मैनेज सर्विस है, तो एडोलॉक्स ने बहुत सारी नई चीजें दी है इसके लिए। तो एक क्या था, दिस इज नोन एज अ, नाम से पता लग रहा होगा, डेड लेटर क्यू, ठीक है? नाम क्या बता रहा है? डेड लेटर क्यू से क्या लगता है? नाम से क्या लग रहा है डेड लेटर क्यू का? Which could not have been processed. हाँ, मतलब वैसा फाइल या वैसा फाइल एलिमेंट, हाँ, वैसा फाइल जो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है मेरे से। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट फाइल। सो एसक्यूएस सेज यू कैन कॉन्फ़िगर दैट थ्रेशोल्ड कि अगर एक फाइल 5 बार पिक हुआ किसी से, या 10 बार हुआ, या 3 बार हुआ, मतलब दैट यू कैन कॉन्फ़िगर, ठीक है? कि अगर कोई एक फाइल 5 बार पिक हुआ है और फिर भी नहीं डिलीट हो पाया है, तो एसक्यूएस क्या करेगा? इसको डेड लेटर क्यू में भेज देगा, ठीक है? और डेड लेटर क्यू पे तुम नोटिफिकेशन रख सकते हो कि एनी ऑफ द मैसेज एज सून एज कम्स इन डेड लेटर क्यू, तुम अपने एक इंजीनियर को नोटिफाई कर दोगे बाय टिकट, बाय मेल, बाय अलार्म, कुछ भी,
और वो फिर उस फाइल को एनालाइज कर सकता है कि हे इस फाइल में प्रॉब्लम क्या है, लेट मी गो थ्रू द कोड, और मैं एक बार ड्राई रन करके देखता हूँ या मैं एक बार अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, और तब आई रियलाइज कि ओ दैट वाज अ बग दैट आई मे फिक्स इन दैट कोड। बट वो मुझे पता कैसे चला? बिकॉज आई हैव कॉन्फ़िगर्ड दिस डेट लेटर क्यू। अगर ये नहीं रहता सो प्रोबेबली ये मैसेज ऐसे ही यहाँ आकर के स्टक होते जाते, राइट? अ बिग प्रॉब्लम। सो समटाइम द इंटरव्यूअर कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन, ठीक है, अगर ये मैसेज प्रोसेस नहीं हो पा रहा है कंज्यूमर से। इसी का एक और एग्जांपल होता है, व्हाट इफ द एसिंक डिलीवरी इज फेलिंग। एसिंक डिलीवरी क्या है? एसक्यूएस से हमने बोला कि लैम्डा सीधे ट्रिगर हो रहा है, राइट? एसक्यूएस के मैसेजेस को लैम्डा कंज्यूम कर रहा है। व्हाट इफ 4 बार में लैम्डा कंज्यूम करता है बट डिलीट नहीं कर पा रहा है? सिमिलर अप्रोच, ठीक है? या इस मैसेज का जो डिलीवरी है वो फेल हो रहा है। तो इन ऑल दोज केसेस वी कैन कॉन्फ़िगर द डेड लेटर क्यू, ठीक है, एंड ऑल दोज मैसेजेस कैन बी मूव्ड इन दिस डेड लेटर क्यू, ठीक है? क्लियर हुआ? Ravi, can you explain the last concept?